Hello students, let us continue chapter 6 integers. The next topic we are going to discuss is addition of integers. Now firstly we will be discussing about addition of integers on a number line, and after that we will discuss about addition of integers without using the number line. So before beginning the topic, I want you all to understand the meaning of more than and less than. When speaking of addition of integers, more than means to add. More than means we will add and less than means we will subtract. ठीक है, अगर more than बोल रहे हैं, so on the number line we will have to travel to the right direction में जाएंगे, because when we move to the right direction the number increases, and when it is told less than, then we will move in the left direction on the number line. So let us begin addition of integers on the number line. Firstly, if it is given 2 more than 5, 2 more than 5 बोला है, that means here more than means to add. So on the number line we will go to the right side. So let us draw a number line. Regular number line, just like we used to draw before. So creating equal divisions with the help of a scale. Now here I am taking 0. यहाँ पे 0 है, 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 and 7, and to the left side of 0 we have negative integers, so here we have all the negative integers till -5. So now we are told 2 more than 5. 2 more than 5 means हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 5 से. We will begin with 5, and 2 more than, that means we will add 2 to 5. तो हम लोग इस डायरेक्शन में जाएंगे, राइट? जब मोर देन है देन वी विल गो टू द राइट. कितना जाना है? 2 यूनिट डिस्टेंस. तो यहाँ पे 1 and 2. सो हियर 2 more than 5 is equal to 7. This is equal to 7. More than में हम क्या करेंगे? We will add. So simply we are adding 2 to 5. तो हम लोगों ने begin किया 5 से and then we went to 7. That is, we covered 2 distances in this direction, in the right direction. What if it was 2 less than 5? अगर 2 less than 5 होता तो क्या करते? बिगिन तो 5 से ही करेंगे. लेस दैन मीन्स वी हैव टू मूव लेफ्ट, यानी कि इस डायरेक्शन में जाना है. इट ऑल्सो मीन्स सब्ट्रैक्ट. सो यहाँ पे लेस दैन मीन्स वी विल हैव टू सब्ट्रैक्ट. So we will begin with 5 and we will go 2 distances to the left in this direction. Then 2 less than 5 कहाँ पे पहुँचे हम? On 3. So 2 less than 5 is equal to 3. So अगर ये था दोनों पॉजिटिव केस के लिए, राइट? 2 more than 5 and 2 less than 5. If it was 2 less than -2. If it was 2 less than -2, then we will begin with -2. 2 less बोला है, that means we have to travel in this direction, and less than means to subtract. So यहाँ पे इस direction में जाएंगे, so we will get 1 and 2 -4. So this is the answer. 2 less than -2 is equal to -4. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 less than -2. So -2 -2. So minus minus we will do plus. इसके बारे में हम सीखेंगे. This is without using the number line, which we will discuss shortly. So this is equal to -4. Without using the number line also we will get the same answer. एक और ट्राई कर लेते हैं. If it was 2 more than -1. If it was 2 more than -1, then we will travel in the right direction, and over here we will begin with 1 and
टू मोर देन बोला है इसीलिए हम 2 हॉप्स कर रहे हैं, 2 जम्प्स कर रहे हैं ऑन द नंबर लाइन. एंड वेयर डिड वी रीच? वी रीच्ड ऑन 1. सो हियर 2 मोर देन -1 इज इक्वल टू 1. So in this way we will add integers on the number line. Next, let us add 3 and 5 on the number line. That is basically we have to do 3 plus 5 using the number line. This we have discussed earlier in chapter 1, but let us recollect it. First of all, on the number line we have to move 3 steps to the right from 0 reaching 3, and then we will move 5 steps to the right of 3. In this way we will add on the number line. So सबसे पहले इस तरह से we will reach 3 from 0 to 3 directly because we are asked to add 5 to 3. तो 3 पे पहुंच गए. अब क्या करना है? 5 ऐड करना है. So 1 2 3 4 5. Where did we reach? We reached 8. So by addition on the number line we can say that 3 plus 5 is equal to 8. Now what if it was -1 plus 3? -1 plus 3 अगर हमें करना है यूजिंग द नंबर लाइन तो कैसे करेंगे? अगेन 0 से कहाँ ट्रैवल करेंगे? -1 पे, बिकॉज हियर आवर स्टार्टिंग पॉइंट इज -1 एंड देन वी हैव टू add 3. That means we will move in the right direction, in this direction. Whenever we have to add हम right में जाएंगे और whenever we have to subtract हम left में जाएंगे. So beginning है 1 से, so we will begin with -1 से, so we will begin with -1. इस तरह से 0 पे 1 पे आएंगे and then 1 से 3 distance लेना है. So 1 2 and 3. Where did we reach? On 2. So this will be equal to 2. लेकिन अगर दोनों नंबर्स माइनस हो तो क्या करेंगे? लाइक इफ़ इट इज़ -2 -2 या फिर -2 -1 भी हम ले सकते हैं. तो सबसे पहले -2 -2 कैसे करेंगे देख लेते हैं. तो 0 से कहाँ जाएंगे? वी विल गो फ्रॉम 0 to -2 फर्स्ट एंड आफ्टर दैट वी हैव टू टेक -2, यानी कि क्या करेंगे? लेफ्ट में माइनस है यहाँ पे तो कहाँ जाएंगे? वी विल गो इन द लेफ्ट डायरेक्शन. और कितना डिस्टेंस? 2. सो यहाँ पे 1 and 2 विच इज़ इक्वल टू -4. Next, let us discuss adding without a number line. Before beginning this, there are some rules that you have to keep in mind to perform addition of integers. So if the integers we are given have signs like so, if the first integer is plus and the second integer has the sign of minus, then this will be equal to minus. यानी कि अगर इस तरह से हमारे पास है +2 and माइनस, अगर हम लोग ऐड ही करेंगे एंड -1 है इस तरह से, देन दिस विल बी इक्वल टू 2 - 1. ठीक है, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 1. एक और ट्राई कर लेते हैं. इफ़ इट इज़ +5 एंड ऐड ही कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐड कर रहे हैं? -10. ठीक है, +5 - 10. तो क्या करेंगे? दिस विल बी इक्वल टू 5 - 10. प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? इट विल बिकम माइनस. सो दिस 5 - 10 इज इक्वल टू, वैसे हम लोग 10 और 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 5. लेकिन यहाँ पे 10 जो है वो ग्रेटर नंबर है, उसका सिंबल क्या है? उसका साइन क्या है? नेगेटिव. सो दिस विल बी इक्वल टू -5. इफ़ इट वॉज 10 - 5 देन द आंसर वुड हैव बीन 5. बट हियर 5 और 10 में से ग्रेटर नंबर 10 है और उसका साइन क्या है? नेगेटिव है. तो हमारे आंसर में जो है साइन आएगा नेगेटिव का. सो हियर +5 प्लस -10 इज इक्वल टू -5. If the first integer has a sign minus and if the second integer has the sign plus, then also while adding we will subtract these integers. For example, if it is -3 and here it is +7. ठीक है, सो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे प्लस का 7 है, बट इसका साइन क्या है? प्लस है. वी हैव टू ऐड -3 एंड +7. तो -3 और +7 जब हम लोग करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट. सो यहाँ पे -3
प्लस 7 विल बी इक्वल टू 7 माइनस 3. 7 में से हम 3 माइनस कर रहे हैं विच विल बी इक्वल टू 4. अब यहाँ पे सिंबल किसका आएगा, साइन किसका आएगा, यहाँ पे साइन आएगा ग्रेटर नंबर 7 का विच इज़ प्लस. सो -3 प्लस +7 प्लस 7 इज इक्वल टू प्लस 4. अब डायरेक्टली आप इसको 4 भी लिख सकते हो. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ऐड प्लस. तभी हम साइन मेंशन करते हैं जब साइन नेगेटिव हो. सिमिलरली इफ़ वी हैड टू ऐड -10 एंड इफ़ इट वॉज +7. ठीक है, हमें +7 और -10 को ऐड करना है. सो यहाँ पे भी इट इज़ माइनस एंड प्लस. सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस. सो -10 प्लस 7 यानी कि क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है. तो 7 माइनस 10 करेंगे तो क्या मिलेगा, -3. वाई -3? बिकॉज द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इज माइनस. 10 बड़ा नंबर है, यहाँ पे 10 इज ग्रेटर दैन 7 and the sign of the greater number is minus. Therefore the answer will have the sign of the greater number which is minus. So यहाँ पे -10 और +7 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -3. नेक्स्ट केस है बोथ द इंटीजर्स आर पॉजिटिव, यानी कि इस तरह से है +5 और ऐड करना है +4. ठीक है, सो यहाँ पे प्लस एंड प्लस गिव्स प्लस. दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे. दिस विल बी इक्वल टू +9. यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज 5 + 4 विच इज़ इक्वल टू 9. ठीक है, ये तो कॉमन ही है जो हम लोग करते आ रहे हैं. इट इज़ प्लस एंड प्लस विच गिव्स प्लस. Next, if it is minus and minus, if both the integers have the negative sign, then also we will add, but the sign will be of the greater number. Here is an example. If it is -5 plus -4, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस माइनस. प्लस माइनस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा. तो इसको कैसे लिखेंगे, -5 -4. Now both the integers have the negative sign, then we will add these two. 5 और 4 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. दोनों का साइन नेगेटिव है तो 5 और 4 को ऐड करेंगे, we will have 9. Now the sign of 9 will be equal to -9, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस का 5 है, ग्रेटर नंबर 5 है. When we are looking for greater number, हम साइन को नेग्लेक्ट करेंगे. वैसे तो -5 जो है दैट इज़ लेस दैन -4, राइट. यहाँ पे -4 ग्रेटर है, यहाँ पे दोनों साइन प्लस है, बट स्टिल यहाँ पे देख लो, यहाँ पे -10 जो है वो लेस है 7 से, बट हमने सिंबल किसका यूज़ किया, -10 का. क्यों, क्योंकि एक्चुअल में साइन को नेग्लेक्ट करेंगे देन 10 इज़ ग्रेटर दैन 7. दैट इज़ वाई वी विल यूज़ द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर. फिर से एक बार हम लोग साइन को नेग्लेक्ट करके कंपैरिजन करेंगे दो नंबर्स का. ठीक है, सो यहाँ पे 5 और 4 के बीच में 5 बड़ा है, सो साइन आएगा माइनस का. लेट अस क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. You add when you have two positive numbers like +3 plus +2 which is equal to +5. So +5 is equal to 3 plus 2. You also add when you have two negative numbers, but the answer will take a minus sign, like -2 plus -1 is equal to minus of 2 plus 1 which is equal to -3. So just like we discussed, अगर दोनों प्लस है तो ऐड होगा और साइन जो है वो प्लस का आएगा. अगर दोनों माइनस है तो भी ऐड तो होगा लेकिन साइन जो है वो माइनस आएगा. Next, when you have one positive and one negative integer, you must subtract, but the answer will take the sign of the bigger number. Ignoring the signs of numbers, decide which is bigger. So just like we discussed, if we have one positive and one negative, या फिर one negative and one positive, दोनों केस में you must subtract. क्या करना है, subtract करना है. बट जो आंसर होगा, आंसर माइनस होगा कि पॉजिटिव होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, बिगर नंबर जो होगा वो. और बिगर नंबर कैसे चूज़ करेंगे, बाय इग्नोरिंग द साइंस ऑफ द नंबर. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव -4 and -7, then
-4 जो है वो ग्रेटर है, बट व्हेन वी इग्नोर द साइन, व्हाट आई वाज सेइंग इज इफ वी हैव -4 एंड -7 देन -4 इज ग्रेटर, बट इफ़ वी इग्नोर द साइंस, अगर हम लोग प्लस कंसिडर करेंगे, +4 एंड +7 में कौन सा ग्रेटर है? 7 ग्रेटर है, राइट। सो अगर -4 और -7 कंसिडर कर रहे हैं तो हम साइन जो है वो ग्रेटर नंबर का पुट करेंगे, तो तब हम लोग नेगेटिव साइन इग्नोर करेंगे, ठीक है। लेट अस ऐड 3 एंड -3। सो उसके लिए नंबर लाइन से अगर हमें ऐड करना है तो व्हाट वी विल डू, वी विल मूव फ्रॉम 0 to +3 and we will move 3 points to the left like so. Where did we reach? We reached 0. So we can say that 3 plus -3 we get 0. In the same way, if it was 2 and -2, 2 plus -2 करेंगे, then also we will get the answer 0. If it was 100 plus -100, then also the answer will be equal to 0, क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 100 minus 100 which is equal to 0. So ऐसे cases में numbers such as 3 and -3, 2 and -2 when added together to each other give the sum 0. sum क्या होगा? 0 होगा. So they are called additive inverse of each other. What are they called? एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि जब हम इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे, जब एडिटिव इन्वर्स को ऐड करेंगे, द सम विल बी इक्वल टू 0. हियर वी आर आस्क्ड अबाउट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 6. तो 6 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, यानी कि 6 में ऐसा हम क्या ऐड करेंगे, दैट वी विल गेट 0. सो 6 प्लस -6 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर -6 इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 6. ऑल्सो वी आर आस्क्ड अबाउट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -7, दैट कि -7 में हम ऐसा क्या ऐड करेंगे, सो वी विल गेट 0. So here we will have -7 plus 7 is equal to 0. Therefore the additive inverse of -7 is equal to 7 and the additive inverse of 6 is -6. Let us now begin exercise 6.2 question number 1. Using the number line, write the integer which is a 3 more than 5. So in this question we have to use the number line and write the integer which is 3 more than 5. So always remember, whenever it is more than, it means plus, so we will go to the right side of the number line, and whenever it is less than, it means to subtract, then we will go to the left of the number line. Let us see the solution. First of all, we have 3 more than 5. So starting from 5, we will go 3 steps to the right. So here 5 is our starting point and we will go 3 steps to the right because it is more than. More than है तो we will go to the right, यानी कि add करेंगे. So going to the right, where did we reach? We reached 8. So 3 more than 5 is equal to 8. Starting from 5 and going 3 steps to the right on the number line, we reach 8. Therefore 3 more than 5 is equal to 8. In the next sub question, we are asked 5 more than -5. So on the number line, we will start from -5 है ना, -5 से 5 more है, that is we will go to the right. So starting from -5, 1, 2, 3, 4 and 5 on the right on the number line. In this direction we will reach 0. Therefore 5 more than -5 is equal to 0. In sub question C, it is 6 less than +2. So starting from +2 and going 6 steps to the left because it is less than. Less than means we have to subtract. So here going 6 steps to the left, we will begin from +2 and going 6 steps, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. We are going to the left because it is given less than given है, इसीलिए हम left side जा रहे हैं and we reach -4. So here you have to write therefore 6 less than 2 is equal to -4.
Next, in sub question D, it is given 3 less than -2. So for this, we will start from -2 and we will go 3 steps to the left. Again, we are going left because less than given है. So -2 से begin करेंगे and we will go 3 steps to the left. Then we will reach -5. So 3 less than -2 is equal to -5 because we reach -5. So in this way you have to write the solution in your notebook. Question number 2. Use number line and add the following integers. First, 9 plus -6. So in this question we have to use number line and add the following integers. Firstly for 9 and -6. So let us see the solution. Question number 2 is almost similar to question number 1. Firstly, we have to add 9 and -6. 9 plus -6 करना है हमें. So for that, starting from 9 and going 6 steps to the left, we reach, फाइंड करते हैं. यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे 9 से. कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 9 से. यानी कि हम 0 से कहाँ जा रहे हैं? लाइक सो वी आर गोइंग 9 यूनिट्स एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग 6 स्टेप्स टू द लेफ्ट. वाई आर वी गोइंग टू द लेफ्ट? बिकॉज इट इज़ गिवन दैट -6. -6 माइनस मीन्स कहाँ पे मिलेगा? लेफ्ट साइड ऑफ 0. सो यहाँ पे 9 से कहाँ जाएंगे? 6 स्टेप लेफ्ट में. सो 1 2 3 4 5 एंड 6. So we are going in the left direction like so. 0 से हम कहाँ गए? 9 पे. 9 यूनिट्स आगे गए और फिर 6 स्टेप्स पीछे आ गए. So we reach 3. Therefore 9 minus 6 is equal to 3. In the next sub question B, it is given 5 minus 11. So यहाँ पे 5 से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल गो 11 स्टेप्स टू द लेफ्ट. स्टार्टिंग फ्रॉम 5 गोइंग 11 स्टेप्स टू द लेफ्ट. सो फ्रॉम 0 वी विल गो टू 5. Once we have reached 5, we will go 11 steps to the left. To start counting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. So 5 minus 11 we get -6. That is we reach -6. We are going in the left direction because it is given -11. अगर +11 होता तो हम राइट में जाते. लेफ्ट में इसलिए जा रहे हैं because it is -11. So we are traveling in this direction and we reach -6. In the same way for sub question C and sub question D, you have to draw a number line and solve like this. So you have to solve these two on your own and write the solution in your notebook. In sub question E, we have -1 plus -2 plus -3. Here we have 3 integers. So how will we do? We will begin from 1. पहले इन दोनों को consider कर लेते हैं. 1 plus -2. Plus minus we get minus. So this is 1 minus 2. -1 -2. So starting from -1, we will go 2 steps to the left. Why will we go left? Because it is -2. So over here 1 and 2. We get -3 when we went 2 steps to the left. Next it is -3. यानी कि हमें 3 मोर स्टेप्स जाना है टू द लेफ्ट. सो -3 से हम जाएंगे 1 2 एंड 3. सो गोइंग 3 मोर स्टेप्स टू द लेफ्ट बिकॉज इट इज़ नेगेटिव इंटीजर. वी आर गोइंग टू द लेफ्ट. वी रीच -6. Therefore here we can write -1 plus -2 plus -3 is equal to -6. In the next sub question F, it is given -2 plus 8 minus 4. So यहाँ पे +8 है. So we will begin from -2 and we will go 8 steps to the right because it is +8. So 1 2 3 4 5 6 7 and 8. We reach 6. ठीक है. हम लोग राइट डायरेक्शन में इसीलिए जा रहे हैं बिकॉज इट इज़ +8 एंड फ्रॉम हियर वी हैव टू गो -4 कवर करना है. दैट इज़ 4 steps to the left. So 4 steps to the left like so. Here we have 1 2 3 and 4 steps to the left. इस डायरेक्शन में हम गए. Then where did we reach? We reached 2. So
-2 + 8 + -4 = 2। फिर से एक बार यहाँ पे -2 से स्टार्ट करेंगे, 8 स्टेप्स हम जाएंगे टू द राइट बिकॉज इट इज़ +8 एंड वेर एवर वी रीच्ड वी विल गो -4 स्टेप्स बैकवर्ड. So 1 2 3 4 to the left we reached 2. So here this is equal to 2. Question number 3. Add without using the number line. First 11 plus -7. So in this question just like it is mentioned we have to add without using the number line. Number line use किए बिना हमें add करना है. So let us see the solution. Here we will be adding without using the number line. So firstly we have 11 plus -7. There are two ways of doing this. सबसे पहले तो rules जो है उसको recollect कर लेते हैं. क्या था? इफ़ इट इज़ प्लस, फर्स्ट इंटीजर इज़ प्लस एंड सेकेंड इंटीजर इज़ माइनस, देन वी विल सब्ट्रैक्ट. If first integer is negative and second integer is positive, then we will subtract as well. If both the integers are positive, then we will add, and if both the integers are negative, then also we will add. So ये जो है ये इस तरह के rules हैं हमारे पास. सो सबसे पहले ये रूल को अप्लाई करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. उसके अलावा जो सेकंड मेथड है वो ये है कि आप 11 को स्प्लिट करो इस तरह से कि जो नेगेटिव नंबर है ना वो उसमें से अलग हो जाए. यानी कि 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 उसमें आना चाहिए. तो 11 को हमें ऐसे लिखना है 11 इज़ इक्वल टू समथिंग प्लस 7. इस तरह से हम 11 को स्प्लिट अप करेंगे. सो इट इज़ 4 + 7. 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 + 7 एंड देन -7 करना है. तो 7 - 7 तो वी विल डायरेक्टली गेट 0 एंड 4 + 0 वी विल गेट 4. सो दिस इज़ वन मेथड. और डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि 11 + -7 है, देन दिस विल बी इक्वल टू 11 - 7 विच इज़ इक्वल टू 4. इन बोथ द वेज वी आर गेटिंग द सेम आंसर. सो लेट अस प्रोसीड विद दिस मेथड फर्स्ट. सो हियर आई एम रीअरेंजिंग 11 एज 4 + 7. और ऐसे हम क्यों कर रहे हैं, ताकि +7 और -7 कैंसिल आउट हो जाए. ठीक है, अगर +1 और -1 है देन वी विल गेट 0. इसी तरह से अगर +7 है और -7 है देन ऑल्सो वी विल गेट 0. ठीक है, सो यहाँ पे 11 को हम लिख सकते हैं 4 + 7 एंड प्लस -7 एंड हियर वी नो दैट 7 4 + 7 एज इट इज़ आएगा, प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, इट विल बिकम माइनस. So 7 - 7 is equal to 0. So if you want you can write 4 + 0 which is equal to 4. So the answer is 4. In this way you can solve. अब ये जो है ये रफ वर्क है, ये आपको नोटबुक में नहीं दिखाना है. This was only for explanation. In this way you will be writing the solution. Next in sub question B you have -13 plus 18. अब यहाँ पे वी हैव प्लस एंड प्लस, सो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो +18. ठीक है, अब 18 को भी हम इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं कि हमें 13 मिले उसमें. सो 13 - 13 तो एज इट इज़, 18 को हमें 13 प्लस समथिंग लिखना है, देन इट इज़ +5. ठीक है, 13 + 5 वी गेट 18. So यहाँ पे -13 + 13 gets cancelled out. That means we get 0. 13 - 13 we get 0. +5 we will have 5. 0 के साथ कुछ भी ऐड करेंगे तो we will get the same number because it is the additive identity. We will get the same number. So in this way you have to solve. रिमेनिंग क्वेश्चंस भी आपको इसी तरह से सॉल्व करना है. तो सब क्वेश्चन C और D आप लोग खुद से ट्राई कीजिए. सब क्वेश्चन ई डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे. इन सब क्वेश्चन ई यू हैव टू ऐड -380 विथ -270. ठीक है, इन सब क्वेश्चन ई वी हैव माइनस इन बोथ द टर्म्स. दोनों ही टर्म्स में माइनस है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम माइनस कॉमन निकाल सकते हैं. माइनस कॉमन निकल गया, अब -380 में से माइनस निकल गया, सो वी विल गेट 380. एंड यहाँ पे प्लस और माइनस में वी हैव माइनस, बट वो माइनस तो कॉमन निकल गया, तो क्या बचा यहाँ पे प्लस, एंड हियर 270.
ठीक है, फिर से क्या किया है यहाँ पे देखो -380 है एंड प्लस ऑफ -270 है। ठीक है, अब इसमें से ये जो माइनस का साइन है वो हमने कॉमन बाहर निकाल लिया। सो ये अगर कट जाता है, अगर ये बाहर निकल जाता है तो क्या बचता है 380 प्लस 270। सो दैट इज़ व्हाट वी आर लेफ्ट विथ। नाउ वी जस्ट सिंपली हैव टू ऐड 380 एंड 270। सो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 380 एंड 270। हियर वी हैव 0, 8 प्लस 7 we have 15, so 5 and again 1 carry में 3 plus 2 we have 5 plus 1 we have 6. So here it is 650 and bracket के बाहर माइनस था तो उसको as it is हम लगा लेंगे. So here -380 plus -270 is equal to -650. यहाँ पे हमने सिंपली ऐड किया है और जो नेगेटिव साइन कॉमन निकाला था उसको as it is हमने यहाँ पे पुट कर लिया है. ठीक है, अगेन दिस वॉज ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन, यू डोंट हैव टू राइट दिस इन योर नोटबुक. एंड नेक्स्ट सब क्वेश्चन एफ में हम लोगों को गिवन है -217 एंड प्लस -100. अगेन हियर वी कैन टेक माइनस कॉमन, so we will be left with 217 plus 100. just like this question, no difference at all, बट क्लियर हो जाए इसीलिए अच्छे से समझ लेते हैं दोबारा. यहाँ पे दोनों ही टर्म्स में, दोनों ही इंटीजर्स में नेगेटिव साइन है. सो व्हेन वी टेक आउट दैट साइन वी विल बी लेफ्ट विद द पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, इस तरह से वी विल बी लेफ्ट विथ 217 प्लस 100. सो व्हेन वी ऐड दिस 0 0 तो यहाँ पे 17 तो एज इट इज़ आएगा. 2 plus 1 we get 3 and ये माइनस का साइन जो है वो as it is. So here we will be left with -317. So -217 plus -100 is equal to -317. Question number 4. Find the sum of A 137 and -354. So in this question we have to find the sum. Sum means to add. So यहाँ पे add करके हमें sum find करना है. So let us see the solution. In this question we have to find the sum of these two numbers. और sum मतलब addition है ना. We know that sum means addition. So this will be equal to 137 plus -354. ठीक है, अब यहाँ पे जो बड़ा वाला नंबर है उसका साइन बड़ा है और यहाँ पे प्लस और माइनस है. देन दिस बिकम्स 137 प्लस माइनस बिकम्स माइनस. सो दिस इज इक्वल टू -354. नाउ वी विल टेक माइनस कॉमन फ्रॉम बोथ दीज नंबर्स. अब यहाँ पे माइनस तो नहीं है तो क्या करेंगे, जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा. सो हियर इट विल बी -137 प्लस 354. वाई डिड वी डू दिस? बिकॉज आफ्टर डूइंग दिस हम लोग रेगुलर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं लाइक सो. -137 इस टाइप का ये हो जाएगा. दैट इज़ वी कैन राइट दिस एज 354 माइनस 137. तो इसको जैसे रेगुलर सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे. रेगुलर सब्ट्रैक्शन जैसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और आगे माइनस का साइन लगा देंगे. देन वी विल गेट द आंसर ईजीली. ओके, अदरवाइज़ हम लोग इसको, अगर आपको इसी स्टेप से आगे कंटिन्यू करना है तो आप लिख सकते हो 354 और फिर भी आपको माइनस तो 137 से ही करना पड़ेगा और जो आंसर आए उसके आगे आपको माइनस लगाना पड़ेगा. दिस इज़ बेसिकली द सेम थिंग. हमने कॉमन निकाल लिया माइनस और क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन नहीं था तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस हो गया. ठीक है, सो व्हेन वी डू द रेगुलर सब्ट्रैक्शन, हियर इट इज़ 4 और ये 7 है तो यहाँ से हम लोग इसको 4 करके 1 कैरी करेंगे. सो दिस विल बिकम 14. सो 14 minus 7 we get 7. दिस इज़ 1 and 3 minus 1 we get 2. ठीक है, सो दिस इज़ इक्वल टू 217 और यहाँ पे माइनस का साइन जो है एज इट इज़. यहाँ पर अगर आप इस तरह से भी करते तो यहाँ पे बड़ा वाला नंबर कौन सा है 354. आंसर तो 217 ही आता, लेकिन ग्रेटर नंबर इज़ 354 एंड दैट हैज़ अ साइन ऑफ माइनस. सो दिस विल बी इक्वल टू -217. सो इन बोथ द वेज यू विल गेट द सेम आंसर, बट इस तरह से करेंगे तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करके लिख सकते हैं. इन सब क्वेश्चन बी इट इज़ आस्क्ड टू फाइंड द सम ऑफ -52 एंड 52.
ठीक है। सो यहाँ पे दिस इज़ इक्वल टू -52 प्लस 52 विच कैन बी रिटन एज 52 -52। क्या किया है हमने, रीअरेंज कर दिया है ना। 52 प्लस 52 को आगे लिख दिया, -52 को बाद में लिख लिया, एंड दिस इज़ इक्वल टू 0। सेम चीज़ में से सेम चीज़ माइनस करेंगे, देन वी विल गेट 0। सो द सम ऑफ -52 एंड 52 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट सब क्वेश्चन C, we have to find the sum of -312, 29 and 192. We have to find the sum of 3 numbers now. So यहाँ पे this is equal to -312 plus 29 plus 192. अब यहाँ पे दो नंबर्स का साइन जो है वो सेम है। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, पहले इन दोनों नंबर्स को सॉल्व कर लेंगे। 29 plus 192. Okay, in the question it is 39, 29 नहीं, क्वेश्चन में 39 गिवन है, सो इट इज़ 39 प्लस 192। ठीक है, इट इज़ नॉट 29, वो 39 है। सो यहाँ पे जो सेम नंबर्स हैं 39 और 192 का सेम साइन है। जहाँ पे सेम साइन होता है हम पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं। सो यह -312 को एज इट इज़ रखेंगे, 192 प्लस 39 जब हम लोग करेंगे, देन वी विल हैव 231. Here you can try. Here 192 plus 39. 9 plus 2 we get 11. 1 carry में 9 plus 4 we have 3 and 13 और ये 1 carry में, so here we have 231. ठीक है, so simply add किया है। सो यहाँ पे 231 एंड इट इज़ -312। सो अब ये फर्स्ट केस की जैसे हो गया, यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन निकालेंगे। सो हियर वी विल हैव 312 माइनस 231। हमें यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, माइनस नहीं था। तो जब प्लस में से माइनस कॉमन निकालेंगे देन वी विल हैव माइनस। सो सिंपली वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 312 माइनस 231. So here 2 minus 1 we have 1 and it is 1 and यहाँ पे 3 है, so यहाँ पे 2 हो जाएगा and we will carry 1. So 11 minus 3 we will have 8 and this will become 0. So this is equal to, ये जो bracket में है that is equal to 81 and here we have minus. So the answer is equal to -81. Next in sub question D we have to find the sum of -50, -200 and 300. So यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं -50 प्लस -200 प्लस 300. सो यहाँ पे जो साइन कॉमन है जिनकी, यहाँ पे -50 और -200 का साइन कॉमन है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू -50 -200 एंड प्लस 300। ठीक है, सो यहाँ पे माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 200 प्लस 50 वी विल हैव 250 और माइनस का साइन आ गया क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर नंबर इज़ 200 एंड इट हैज़ अ नेगेटिव साइन। सो हियर इट विल बी -250 प्लस 300। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं 300 माइनस 250 विच इज़ इक्वल टू 50। सो द आंसर इज़ 50। इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व। Question number 5. Find the sum. First, -7 plus -9 plus 4 plus 16. So here we have 4 integers and we have to find their sum. So let us see the solution. In question number 5, we have to find the sum of 4 integers and जैसे हमने पहले किया था, जो जिनके साइन सेम है उनको पहले कंसिडर कर लेते हैं। सो यहाँ पे we have -7 एंड प्लस और माइनस है तो वी विल हैव -9 एंड दिस इज़ +4 प्लस 16। तो प्लस वालों को पहले सॉल्व कर लेंगे और माइनस वालों को भी साथ में सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ पे 7 और 9 दोनों का साइन क्या है, माइनस है। माइनस माइनस वी हैव प्लस। सो सबसे पहले हम ऐड करेंगे 7 एंड 9 को। सो हियर वी विल हैव
16 और साइन क्या आएगा ग्रेटर नंबर का, सो दिस इज -16 एंड हियर वी हैव 4 + 16 विच इज़ इक्वल टू 20। आप लोग 20 भी लिख सकते हो या फिर इस तरह से इसको रीअरेंज भी कर सकते हो, +16 + 4, सो -16 + 16 वी हैव 0, so the answer is equal to 4. In this way also you can find. And similarly next in sub question B we are asked 37 plus -2 plus -65 plus -8। ठीक है, अब यहाँ पे भी जो जिनके माइनस साइन है उनको साथ में ले लेते हैं, तो 37 जो है उसको एज इट इज़ रखेंगे। हियर वी विल फर्स्टली सॉल्व दीज 3, सो -2 माइनस एंड प्लस वी हैव माइनस एंड हियर ऑल्सो माइनस प्लस वी हैव माइनस। अब माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 65 + 2 करेंगे तो क्या मिलेगा 67 एंड 67 हो गया ये, उसमें हमें ऐड करना है 8, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 75। सो दिस इज़ इक्वल टू 75, बट यहाँ पे ग्रेटर नंबर है 65 जिसका साइन नेगेटिव है, माइनस है, सो दिस विल बी -75 एंड वी विल राइट +37 एज इट इज़। नाउ इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेंगे, सो वी विल हैव -37 + 75 विच इज़ इक्वल टू 75 - 37। ठीक है, 75 - 37 करेंगे देन वी विल हैव 38 और यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये एज इट इज़, सो दिस इज़ इक्वल टू 38। सो 37 + -2 + -65 + -8 इज़ इक्वल टू -38।